सभी को नमस्कार। आज का दिन में अंडमान निकोबार जर्नलिज्म फर्टर्निटी सेलेक्टेड जो मीडिया पर्सन जो है मंडे अंडमान निकोबार से निकले थे चेन्नई के लिए, और आज वेडनेसडे हम लोग आज आंध्र प्रदेश में हैं। और जो पीछे आपका जो साइड जो है वो सबका एक तरह का इंस्पिरेशन भी बोल सकते हैं कि कभी सोचे भी नहीं होंगे हम लोग कि इसका अंदर एंटर होएगा इसरो, जो आज तक हम लोग टीवी में देखा जाते हैं हम लोग। और यहाँ से हर साइंटिस्ट अब APJ अब्दुल कलाम, बहुत सारा नंबी सर, हाँ सर, बहुत सारा लिविंग लेजेंड है जो इस तरह का बहुत सारा साइंटिस्ट यहाँ से निकले हैं। यहाँ से हम लोग का एक तरह का बहुत ही इंडिया का प्राइड है इसरो। तो यहाँ में श्रीहरिकोटा में हम लोग आए हुए हैं और आज हम लोग अंदर विजिट करें, बहुत सारा चीज़ देखे हैं। यहाँ का कंट्रोल रूम देखे, लॉन्चिंग पैड देखे, लॉन्चिंग पैड 1, 2 में एक हम लोग विजिट करें। लॉन्चिंग पैड 1 में जो स्टार्टिंग जो पहले का फर्स्ट लॉन्चिंग पैड 1 जो है उसमें हम लोग अंदर गए। बाहर 63 मीटर का जो ऊपर ऊंचाई जो है वहाँ से हम लोग एरियल व्यू पूरा हम लोग देखे। और इसके ऊपर में बहुत सारा हम लोग का ब्रीफ दिया गया जी हम लोग का। तो यहाँ का जो ऑफिशियल जो गोपी कृष्णा सर है वो बहुत अच्छा से हम लोगों को ब्रीफ दिया गया किस तरह का फंक्शन होता है और ईयरली कितना सारा यहाँ में डेवलपमेंट होता है। तो ये एक तरह का एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। ये कम्प्लीटली इसका क्रेडिट है कि PIB चेन्नई को दिया जाता है। और स्पेशली हम लोग का विजय सर जो है इसको हम लोग बहुत अच्छे से तरीक़ा से कोऑर्डिनेट करके हम लोग साथ में लेके आए। तो हम लोग के साथ में और भी बहुत सारा मीडिया पर्सन्स है, तो उनसे भी हम लोग बात करना चाहेंगे, उनका भी व्यूज़ देखना चाहेंगे किस तरह का इनका व्यू है करके। थैंक यू सो मच। So I'm Rashmi, the editor of The Wave Andaman, and with my fraternity group of media people, now that we are in a visit in the Tamil Nadu region via PIB. Today we had the opportunity to meet ISRO, interact with the ISRO and the Sriharikota Space Research Station, and it was a once in a lifetime experience for all of us. The entire hosting was delightful, and the amount of work and the dedication, security that we have seen inside the campus, it's commendable. In a true sense, we can say the patriotism, is seen in the entire sense of community here. So we had then opportunity to be briefed by the senior officials over to us on various missions of that has taken place from these various place, and the GSLV, PSLV, and all the launch pads and the launch assembly points that we have always visualized as a media coverage over the television. We all had the opportunity to see it in real time, and in a true essence, it is highly motivational and also critical for the future generation to come and experience this. Students around this place have a great opportunity to come and visit, and they have a tour, guided tour by the officials here, but students from Andaman rather miss the opportunity. So it can also be a very much added misplace where the government administration of our island can curate a tour plan to bring our school children and who can be motivated and actually understand how this entire things function. Tell us about the control center experience. Yes, so we did visit the control center where we all the launch on the day of launch, what goes through the, you can say, the war room of the launch mission, where all the directors of various departments, they right from the cameraman, CCTV to controllers to the satellite operators, all of them sit, and right where also the president and prime minister come and sit and experience and witness the launch of our satellites. So there, if you see, even though today it was an empty space, the amount of calibration and the amount of work they still do, and their ongoing the back end work that never gets highlighted. We got to see that and experience, and it was once in it was in a true sense, you can say that it is a place where people work not just out of curiosity, just for the sake of work, but out of their passion for the mission that they are working on.
One of the rarest things that we got a chance to go to the tower. Yes. Which hardly anybody can do. Right. What was the experience? Oh, the sheer size and the whole experience of us were going to 62 meter high up, and to see how exactly the satellites and the rockets are being assembled, and how step by step they are being tested and everything. And us being one of the very few media organization who from our island who have got the opportunity, and in fact from India also, who have witnessed this, it is we can all just say that we are grateful to the organization and also to the PIB who have helped us to get into this organization and get that experience. Thank you so much. आज जो विजिट था मीडिया का, पहला बार अंडमान का मीडिया गया है यहाँ पे अंदर, तो क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? हमारे लिए तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मीडिया के पर्सन को जो हमारे PIB के तरफ से विजय ने लेके, उनके लिए मैं तहे दिल से सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये एक पहला अवसर है कि इसरो को जो है आज देखने का एक मौका मिला। यहाँ का इसरो का जो क्या तरीका से इनका कैसे इनका अचीवमेंट है, एक एक जगह में लेके गया। जो जगह रॉकेट को पहले लॉन्च करने का जगह दिखाया गया, फिर उसका बाद में उसको मैन्युफैक्चरिंग का क्या क्या तरीका है, किस तरीका का मैन्युफैक्चर करता, किससे क्या क्या फ़ायदा होता है जो रॉकेट लॉन्च करने में। और उसी तरह जो है यहाँ में देखा कि इसका अंदर में करीबन 2200 आदमी जो है काम करते हैं। उसके अलावा कई प्राइवेट एजेंसियों का तरफ से भी लेबर हैं, जो कि पूरा एरिया जो है सिक्योरिटी व्यू पॉइंट में जो है पूरा जो है कब्जा किया हुआ है, जिससे कि कोई भी आदमी अंदर नहीं जा सकता। हमें बहुत ही महत्व लगा कि कम से कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह से एक या में श्रीहरिकोटा देखने का एक अवसर इसरो का मिला। इसलिए मैं बहुत ही यहाँ के जितने तमाम ऑफिसर्स हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अंदर में एक एक चीज़ जो है बहुत ही तरीका का, सिक्योरिटी का इतना अच्छा महत्व है कि तरीका से उन्होंने एक एक जगह इंक्वायरी करके पूछताछ करके अंदर छोड़ा। हमने सारा जगह गया जहाँ लॉन्चिंग पॉइंट है जो 163 मीटर हाइट में, उसका जो है तहे से हम लोग सब मुआयना किया, सब चीज़ को देखा और लगा इसको ये जो है यहाँ के अंडमान के बच्चों को भी एक बार जो है लेकर के दिखाना चाहिए। और मैं इस अवसर पर अंडमान निकोबार के IP डिपार्टमेंट को जो है एक सलाह मशवरा दूंगा। कम से कम मीडिया का पास में सालों का बजट जो है करीब 15 लाख रुपया जो है मीडिया को घुमाने का, उसका अलावा जो 63 लाख रुपीज़ जो है मीडिया को घुमाने का जो पैसा है, ये लोग अपना कैमरा लेने में, गाड़ी लेने में, अदर पर्पस में ये लोग वो वेस्टेज करते हैं मनी। कम से कम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, कम से कम उनको कम से कम लेके आए, दिखाए। पिछले 8 साल में हमारा कोई भी किस्म का मीडिया ने IP डिपार्टमेंट में नहीं काम किया। ये हमारे आदरणीय चीफ सेक्रेटरी को उन तक पहुँचाने मानता हूँ। कम से कम मीडिया का बारे में जरा सोचिए। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी, और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। सबसे पहले मैं PIB पोर्ट ब्लेयर रीजनल जो डायरेक्टर है मिस्टर विजय को बहुत एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड करता हूँ कि उन्होंने एक
सोचा कि अंडमान के मीडिया को थोड़ा बाहर का एक्सपोजर दे, तो एक टीम बना के उन्होंने हमें तमिलनाडु के वेरियस इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंक्लूडिंग इसरो सेंटर श्रीहरिकोटा, वहाँ पे उन्होंने हमारा विज़िट करवाया और हम रियली मैं बहुत खुश हूँ। हमारी टीम बहुत खुश है कि हम आज यहाँ पे आए हैं। हमने इसरो का फंक्शनिंग कैसा होता है, क्या क्या इनका सैटेलाइट कैसा जाता है, कैसा लॉन्च होता है, सब हमें बताया। एंड आई थिंक इसी लाइन में, इसी ट्यून में एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अंडमान के लोकल मीडिया को एक ट्रिप कराए कंट्री के दूसरे पास। पहले ये एक्सपोजर ट्रिप होता था, लेकिन रिसेंटली ये अभी हॉल्ट हो गया है, रीज़न अननोन उनके पास है। बस इस तरह ट्रिप कंटिन्यू कराए एंड ये इस तरह का ट्रिप हमेशा होने चाहिए। हमें भी थोड़ा एक्सपोजर, अंडमान की मीडिया को भी थोड़ा एक्सपोजर होगा कि भाई वहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे बहुत सारे कुछ देखने को है, लेकिन फिर हमारा एक लिमिटेड हुआ है। और हमारा जो इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, जो कि एक नोडल एजेंसी है मीडिया को टेक केयर कर, होता रहता है शायद मेरे, सॉरी टू यूज़ दिस स्टेटमेंट, बट टूरिज़्म इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट एक सोया हुआ डिपार्टमेंट है। सही टाइम है डिपार्टमेंट थोड़ा जाग जाए, थोड़ा इस तरह का टूर और करे, ताकि हमें भी थोड़ा अंडमान की जर्नलिस्ट को भी बाहर के थोड़ा एक्सपोज हो। एज ए जर्नलिस्ट इस तरह के इंस्टीट्यूशन में जाना और समझना चीज़ों को कितना मैटर करता है और कितना एनरिच करता है एज ए मीडिया पर्सन? नहीं तो बहुत सारा, अभी मैं बताता हूँ। इससे पहले हमारे नहीं मालूम था क्या होता है, इसरो कैसा लॉन्च करता है, इसको पैड कैसा है, लॉन्चिंग पैड कैसा है, ये कैसा हाउ टू ये फंक्शनिंग कैसा होता है। लेकिन आज जब हम लोग गए, हम लोग मिले, इनके सीनियर ऑफिसर से बात करें, इंटरेक्ट करें, तो हमें पता चला है कि कैसा उनका होता है और कैसा इसमें अंडमान को भी कैसा बेनिफिट होता है, क्योंकि अंडमान का इसरो सेंटर है एंड कनेक्टेड कैसे है अंडमान। तो ये सारा चीज़, नया चीज़ हमें देखने को मिला और हमें सुनने को मिला और हमने अपना आंखों से देखा है। वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस है और ये इसे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करते हैं। इसे वेरी यूनिक एंड रेयर अपॉर्चुनिटी मिला है एंड हम लोगों ने उनका पूरा मैक्सिमम अवेल करा, उनका बेनिफिट हमने उठाया है। थैंक यू। थैंक यू।